Good morning, dear all students of commerce. I am Dr. Indramal Goyal, and today we will discuss terminology of accounting. Accounting is a distinct branch of study. It is important in the life of all the people because it relates to keeping the proper record of all financial transactions which have taken place during the day-to-day operational activities. For business organization, accounting is essential because a business requires calculation of profit and loss at the end of the year. A business have to disclose its financial position, which is possible only when all transactions are properly recorded as and when they have taken place. Accounting is a separate subject. It is a systematic and scientific method of recording the transaction which enable accountant and the management of the business to prepare financial statement at the end of the year and to calculate operational result and financial position and convey information and data to all the stakeholders of the business. There are so many internal and external parties which are directly or indirectly interested in our business. So accounting provides valuable information and data to all the users of accounting information that we have discussed in a separate video. Today we will discuss in brief the terminology, various terms which are used in accounting, which will enable you to understand our subject accountancy in better way. First of all, business. Business means state of being busy. In wider sense, business is an economic activity which is performed by the human being as a source of his livelihood within the permissible law of the country concerned. So we can say that business is an economic activity which is performed for earning profit. Business is a legal activity. Only those activities which are permissible by law are to be performed. If you are engaged in some illegal activity, unlawful activity, it will be subject to punishment, imposition of fine and penalty, and sentence to jail, sentence to imprisonment. And business is a human activity. It is performed by the human being as a source of livelihood. So business, what is business? So business is a economic activity, business is a human activity, and business is a legal activity. So, or what is organization? So next word is organization. Organization का मतलब है संगठन. When a business activity is performed by a group of persons with the help of so many persons of diverse qualification, experience, expertization, and they all perform different activities but towards a particular goal. So organization is a group of people who work for the achievement of a common goal, whose activities are interrelated and interdependent. So business organization is a large scale economic activity which is performed by a group of persons of different qualification, experience and expertization, but they all work together towards achievement of a particular goal. तो अगर आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा? कैपिटल. Our third word is capital. Capital मतलब पूंजी. Capital means initial financial outlay for commencement of a business. The money which is invested for the first time to start a new business by the businessman so as to earn his living and to perform a legal activity
continuously throughout the lifespan to earn profit, to earn his living is called as capital. So capital means money which is invested initially. It may be 10 lakh, 50 lakh, 5 lakh, 1 crore, 2 crore, depending on the nature and the size and the scale of the business organization. So capital means punji. Capital is the lifeblood of the business. Capital is essential. Without capital, no plan can be executed. So capital is the money which is invested initially for the first time. कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बाद में आप एक बिजनेसमैन है, a person who is engaged in business activity is called as businessman, who invests the capital and who is the owner of the business is called as a proprietor of business. Is entrepreneur. Owner. A person who start the business, who invest capital, who purchase the assets, who carry on the business, take the decision regarding the business. So he is called as the owner of the business and synonym is proprietor. Proprietor का मतलब ही मालिक. जो व्यक्ति व्यवसाय शुरू करता है वो उस व्यवसाय का मालिक होता है. But he is also called as entrepreneur. Entrepreneur का मतलब होता है साहसी. Because if we start a business with a view to earn profit, but there is no guarantee that we will be able to earn profit. Business is a game of risk. There may be profit or loss, depending on the situations likely to arise in future. If all the events occur according to your expectation, all the events are favorable to you, then you will be able to earn profit. And if all the events do not occur according to your expectation in future, then it may result out loss. So the result of the business may be profit or loss. That is why a person who commences a business as a source of his livelihood is called an entrepreneur. हिंदी में इसका मतलब होता है साहसी. ऐसा व्यक्ति जो स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का साहस करता है, वो इसलिए उसको साहसी कहते हैं क्योंकि लाभ कमाना उसका उद्देश्य है लेकिन निश्चितता नहीं होगी. तो ये कैपिटल ओनर. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स. गुड्स हिंदी में इसको बोलते हैं माल. माल मतलब वह वस्तु जिसको क्रय करके अधिक मूल्य पर बेचा जाएगा और लाभ कमाया जाएगा. या अगर आप उत्पादक है, मैन्युफैक्चरर है, तो आप फैक्ट्री लगाएंगे, रॉ मटेरियल और अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ प्रोसेसिंग करके एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और वो उसे बेचेंगे. तो दैट विल बी द गुड्स. तो व्हाट इज गुड्स? गुड्स मीन्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेड. ए प्रोडक्ट और आर्टिकल which is purchased with a view to sell at higher rate and to earn profit. तो माल, अगर आप कपड़े की दुकान खोल लें तो कपड़ा आपके लिए माल है. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है वो आपका माल कहलाएगा. इफ यू आर डीलर ऑफ फर्नीचर्स तो फर्नीचर आपका गुड्स है, फर्नीचर माल कहलाएगा. और अगर आप प्रॉपर्टी डीलर है तो लैंड एंड बिल्डिंग आपके लिए माल है. लेकिन अगर आप एक कपड़े के व्यापारी हैं और एक बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग आपके लिए एसेट्स हो जाता है. So depend on your nature of business, depend on the frequency of the transaction. So whatever goods is purchased with a view to sell at higher rate and it is on regular basis, it will be called as goods माल. अब इसके goods के चार रूप हो जाते हैं, जैसे purchase return, sales and fourth one is sales return. तो purchase, the word purchase is used for goods. वह माल जो आपने खरीदा है ताकि उसको अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ कमा सके तो आपके लिए परचेज है. जब आप परचेज करेंगे तो आप होलसेलर से खरीदेंगे.
आप मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे और वो माल आपके बिजनेस में आएगा, उसी माल को आप ग्राहकों को दिखाएंगे, समझाएंगे, उसको खरीदने के लिए एनकरेज करेंगे। तो आपने वो पहले परचेज किया, अपने बिजनेस प्लेस तक लाया और बाद में आप उसको कस्टमर को बेचेंगे, तब वो सेल्स कहलाएगा। वही माल जो आपने खरीदा है पहले, बाद में उसे बेचेंगे। तो देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आप पहले बायर थे और उसी माल के लिए आप सेलर बन जाते हैं, बिकॉज यू आर द ट्रेडर। सो वी कैन से दैट द ट्रेडर और द बिजनेसमैन इज द मिडल मैन बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। एक बिजनेसमैन होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है और फाइनल कंज्यूमर को, कस्टमर को माल बेचता है, तो ही इज द मिडल मैन। तो इसलिए परचेज मीन्स बाइंग द गुड्स विद ए व्यू टू सेल एट हायर रेट। तो इन केस ऑफ परचेज द गुड्स विल बी कमिंग इन, इसलिए ये रियल अकाउंट डेबिट कर देंगे इसको। और अगर आप इसको नॉमिनल अकाउंट माने तो इसको मतलब आपने परचेज किया तो आपने पेमेंट किया तो आपके लिए एक्सपेंसेज हो गया, इसलिए वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो परचेज रिटर्न, जो माल आपने खरीदा और अगर आपको पसंद नहीं आया, आप बेच नहीं पा रहे हैं, आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं आया, आप इसको सप्लायर को वापस रिटर्न कर देते हैं। इट विल बी कॉल्ड एज परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। फिर विक्रय, जब आप माल खरीदा है, आपको बेचकर लाभ कमाना है, तो सेल मीन ट्रांसफर ऑफ द गुड्स एट ए सर्टेन कंसिडरेशन। सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द बायर एट ए सर्टेन मॉनेटरी कंसिडरेशन। हिंदी में से बोलते विक्रय। विक्रय का मतलब माल बेचना, ग्राहक को एक निश्चित मूल्य लेकर माल का स्वामित्व और अधिकार का हस्तांतरण कर देना, ताकि वो उसका उपभोग कर सके, उसका यूज कर सके। सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। जो माल हमने बेचा है वो अगर हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आया, वो उसके लिए पर्पजफुल नहीं है, तो वो हमें रिटर्न कर सकता है। तो व्हाट इज सेल्स रिटर्न? द गुड्स वंस सोल्ड इफ रिटर्न्ड बाय द कस्टमर टू आवर बिजनेस, इट विल बी कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न। जब बेचा हुआ माल किसी ग्राहक के द्वारा किसी भी कारण से लौटा दिया जाता है, तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है, विक्रय वापसी कहलाता है। तो ये हमारी माल से संबंधित हो गई ट्रांजैक्शन। अब उसके बाद में है नेक्स्ट ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण, और ड्राइंग मतलब जब एक व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए कुछ माल, पैसा, संपत्ति या सेवाओं का आहरण करता है, निकालता है अपने फैमिली यूज के लिए, हाउस होल्ड यूज के लिए, तो वो आहरण कहलाता है। आई हैव प्रोवाइडेड यू द नोट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग। तो उसमें हमने डिस्कस किया है गुड्स, कैश, एसेट्स और सर्विसेज ड्रॉवन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल और हाउस होल्ड यूज इज नोन एज ड्रॉइंग। So drawing refers to personal expenses of the proprietor. When you draw money, when you draw goods or assets from the business for your personal use, it will reduce your capital to the extent of its monetary value. तो आहरणों का, संपत्ति या माल या रुपए जितने भी निकाले उसका कुल मौद्रिक मूल्य है, वो आपका आहरण है, वो आपका निजी व्यय है, और उसका आपका पूंजी है वो घट जाएगी, तो वो आहरण कहलाता है ड्राइंग। और what are forms of drawing? Drawing may be in form of cash, may be in form of goods, may be in form of assets, और may be in form of services। जैसे सर्विसेज मतलब जैसे कोई एम्प्लॉय आपके दुकान में बिजनेस में काम करता है और उसको आप 20,000 रुपये महीने का मान लीजिए सैलरी देते हैं या 20 वेजेस देते हैं, उसमें से आधा टाइम वो बिजनेस में काम करता है और आधा टाइम वो अपने आपके घर के काम भी सारे करता है, निजी कार्य भी करता है। तो उसका जो 20,000 के लिए तो आधा है ना, वो आपका आहरण माना जाना चाहिए। उसका वेजेज का आधा रुपया आपका पर्सनल एक्सपेंसेज वेजेज माना जाना चाहिए, वो कैपिटल में से घटाया जाना चाहिए। और आधा एक्सपेंसेज जो बिजनेस में काम करने के लिए दिया जाता है, दैट इज द एक्सपेंसेज ऑफ द बिजनेस, और वो वहाँ हम P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे, राइट। तो ये हमारे आहरण है। अब उसके बाद में जो है किसी बिजनेस को चलाने के लिए हम पे करते हैं रेंट, या पहले एक्सपेंसेज की बात करते उसी में सारे पॉइंट ले लेंगे। तो एक्सपेंसेज, देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेज व्हिच आर रिलेटेड टू बिजनेस व्हिच आर पेड ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस।
जब हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स किया था फॉर प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, हमने एक चार्ट के माध्यम से आपको सारे एक्सपेंसेज के बारे में बताया था। तो फिर भी हम एक्सपेंसेज के कुछ एग्जाम्पल है वो वापस कर लेते हैं। व्हाट आर वेरियस एक्सपेंसेज रिलेटेड टू बिजनेस? तो नंबर 1 सैलरी। तो एक व्यवसाय में जो कर्मचारी काम करते हैं, अकाउंटिंग क्लर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, या सेल्समैन है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन सबको हम सैलरी देते हैं। तो सैलरी अर्नर आर क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सनल एंड दे हेल्प्स अ लॉट in promoting our business, and they are qualified persons. Their job is the white collar job. They work in our office and they get salary. They are professionally qualified and trained fellow. तो ऐसे व्यक्ति जो हमारे व्यवसाय में सेवाएं दे रहे हैं, जिनके बिना हमारा व्यवसाय चलाना संभव नहीं है, हम उनको सैलरी देते हैं। सैलरी मतलब वेतन, मंथली आधार पे दिया जाता है। उसके बाद वेजेस। Wages is given to the workers. So wages means remuneration paid to the workers in our organization. Workers में जैसे कोई माल पैकिंग करने वाला है, माल की लोडिंग और अनलोडिंग करने वाला व्यक्ति है, हमारे दुकान का, बिजनेस प्रीमिसेस का, गोडाउन का सफाई वगैरह करने वाला व्यक्ति है, वो सब हमारे वर्कर्स हैं। They are equally important in our business and they are less educated. That is why they are doing फिजिकल नेचर ऑफ वर्क। उनका कार्य ज़्यादा शारीरिक श्रम वाला है और इसलिए इसके बदले में, उन काम के बदले में उन्हें हम जो पैसा देते हैं ना, दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज वेजेज। हिंदी में बोलते हैं मजदूरी। जो मेहनत करता है, फिजिकल श्रम करके अपना पैसा कमाता है, उन्हें वेजेज दिया जाता है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज है बिजनेस का। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है क्योंकि ऑफिस में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो वेजेज अर्नर होते हैं वो लेस एजुकेटेड होते हैं और उनका जॉब जो है वो ब्लू कॉलर जॉब कहलाता है। इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पैसा कम मिलता है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। सो वी हैव इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन अवर लाइफ। तो जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, सिंसियर नहीं होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में सीरियस नहीं होते हैं, तो उनको बाद में मजदूरी करनी पड़ती है। तो नाउ यू आर टू डिसाइड कि आपको फ्यूचर में सैलरी अर्न करनी है या वेजेज अर्न करना है। So better to work hard, better to be sincere and regular in study. So if you will work hard in the first 25 years of your life, certainly you will enjoy throughout your lifespan and you will enjoy luxurious life. You will be able to earn lot of money. You will enjoy high social status and you will be able to fulfill your all dreams. So education is important in our life. I want to convey this message to you through this video and through this chapter also, right? So salary, wages, then rent मतलब किराया। It is one of the expenses of the business. If it is paid to the landlord, to the owner of the business premises. अगर आप व्यवसाय करते हैं तो जो दुकान, कोई शोरूम अगर आपने किराए पे लिया हुआ है तो उसका जो मालिक है उसे आपको हर महीने किराया देना पड़ेगा एक निश्चित राशि से। दैट विल बी द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ द बिजनेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑफ द बिजनेस, दैट इज द रेंट। फिर उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट communicate message about our product to the prospective customer. It should be attractive, it should be interesting, it should be meaningful. Then only the customer will be attracted and they will turn to buy that goods. So विज्ञापन, advertisement, it is given through advertising agencies. And the advertisement may be in the newspaper, in the magazine, through FM, maybe through television or through social media. So it is effective means of communication with the customer, prospective customer, to convey our thought and idea about our product to the prospective customer. क्योंकि जब तक आप विज्ञापन नहीं करेंगे, अपनी वस्तु का विज्ञापन नहीं करेंगे, तो हमारे भावी जो कस्टमर है उनको पता ही नहीं चलेगा। और जिन लोगों को आप माल बेचना चाहते हैं उनको पता ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो नहीं खरीदेंगे। सो एडवर्टाइजमेंट इज अ नीड ऑफ द आवर। एडवर्टाइजमेंट इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज व्हाई crores of rupees are invested, spent by large scale business houses to advertise their product through various media of communication to make it effective
and to convey the knowledge about the product to the prospective customer. So उसके लिए भी हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो इट इज वन ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कुछ जो है लीफलेट्स बनाने पड़ेंगे, आपको अपना बिल बुक है वो प्रिंट करानी पड़ेगी, इनवॉइस है वो यानी कि प्रिंट करवाना पड़ेगा, और आपको स्टेशनरी भी चाहिए. स्टेशनरी में भी बहुत सारा सामान आता है, तो स्टेशनरी में भी जैसे आप अपनी स्टडी में भी स्टेशनरी यूज करते हैं, देयर आर सो मेनी आइटम्स ऑफ स्टेशनरी एंड इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑल्सो. कैश बुक है, लेजर है, जर्नल है ना, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, और ये सारे सामान खरीदने पड़ते हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ स्टेशनरी एंड द बिजनेस हैव टू पे सम एक्सपेंसेस फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. पोस्टेज एंड टेलीग्राम. पोस्टेज एंड टेलीग्राम तो बंद हो गए हैं, लेकिन पोस्टेज एंड कम्युनिकेशन में बोल देता हूँ. एक बिजनेस को कई बार जो है ना गवर्नमेंट एजेंसीज को, बैंक को, इंश्योरेंस कंपनीज को लेटर लिखना पड़ता है, उसका रेस्पॉन्स हमें मिलता है, तो उस पर ऊपर स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प लगाने पड़ते हैं और हमारे को मैसेज कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो अभी हमारे जैसे मोबाइल का खर्च है या पोस्टल स्टाम्प है, स्पीड पोस्ट पे जो आपने खर्च किया, कुरियर को जो दिया, तो वो सब हमारा पोस्टेज स्टाम्प कम्युनिकेशन का एक्सपेंसेज आएगा. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेंसेज ऑफ द बिजनेस. तो हमारे एक्सपेंसेज में अब हम लिखेंगे फ्रेट, FREIGHT, फ्रेट मतलब भाड़ा. अगर आप एक बिजनेसमैन है, माल खरीदोगे, माल दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या जहाँ से भी बाहर से माल आता है, तो इट विल बी ब्रॉट टू योर बिजनेस डेस्टिनेशन थ्रू रेलवे और थ्रू द ट्रक्स. तो इन सब का भाड़ा देना पड़ता है, ठीक है ना. तो फ्राइट अगर आप सिर्फ से भी माल मंगाते हैं आएगा, तो उसका भी फ्राइट हमें पे करना पड़ेगा. फ्राइट मतलब भाड़ा है, ठीक है. तो ये बिजनेस का एक्सपेंसेज है. तो जो ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनी, रेलवे कंपनी या शिपिंग कंपनी को माल का अपने डेस्टिनेशन बिजनेस प्लेस तक लाने के लिए दिया जाता है, वो फ्राइट कहलाता है. फिर कार्टेज, CARTAGE, कार्टेज मतलब गाड़ी भाड़ा, ठेला भाड़ा. अगर मान लो जो व्यापार आप कर रहे हैं, कोई माल हो गया रेलवे से, माल रेलवे स्टेशन तक तो आ गया, लेकिन रेलवे स्टेशन से आपका दुकान, आपका बिजनेस प्रीमिसेस, आपकी फैक्ट्री वो 5-7 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, तो फिर वो माल लोडिंग टैक्सी में या जो स्मॉल ट्रक्स होता है या कार्टेज है, कार्ट है, ब्लॉक कार्ट है, बुल कार्ट है, उसके माध्यम से ले जाया जाएगा. तो वो आपको ठेला भाड़ा, गाड़ी भाड़ा कहलाएगा, वो भी देना पड़ेगा. फ्राइट कार्टेज. फिर इम्पोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क. अगर आप माल विदेशों से मंगाते हैं तो उस पर जो टैक्स लगेगा, दैट इज द इम्पोर्ट ड्यूटी. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इम्पोर्ट ड्यूटी. फिर एक होता है ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी. ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी मतलब हिंदी में बोलते हैं चुंगी कर, यानी कि इट इज द टैक्स व्हिच इज imposed by the local authority, by the local government, when the goods enter into the territory of your district. So there are so many checkposts around the city to enter in your city. तो वो उस पे उस समय जो माल को देखकर उसके इनवॉइस के आधार पे जो टैक्स लगाया जाता है, वो ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी कहलाता है. एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क. यह सरकार द्वारा जहाँ फैक्ट्री कंपनी जो होती है वहाँ पे जितना माल उत्पादन होता है, उस माल की मात्रा के आधार पर उसी समय टैक्स लगाया जाता है, उसे एक्साइज बोलते हैं, उत्पाद शुल्क बोलते हैं. नेक्स्ट है कस्टम. जब माल विदेशों से आयात किया जाता है तो सी पोर्ट पर, हार्बर पे या एयरपोर्ट पर जो टैक्स लगाया जाता है वो हमारा कस्टम ड्यूटी कहलाता है. तो ये इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, फिर रॉयल्टी. रॉयल्टी is charged on all mineral resources which are extracted from the fibers of land. तो जहाँ किसी स्थान पर माइंस है, उस माइंस से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज
जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल कर फिर बाहर उद्योगों में बेचते हैं। तो वहाँ से माइन एरिया से माल बाहर जो ही निकलता है, चेक पोस्ट पर ये टैक्स लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी, और इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो एक्सपेंसेस मतलब यहाँ में हमने सैलरी, वेजेज, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं कमीशन। कमीशन मतलब किसी एजेंट को दिया गया शुल्क। अगर आप कोई माल किसी एजेंट के माध्यम से खरीदते हैं तो उस पर एक सर्टेन रेट से आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो कमीशन इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेंसेज ऑफ द बिजनेस विच इज पेड टू द मिडलमैन फॉर द सेफ परचेजिंग, टाइमली परचेजिंग एंड क्वालिटेटिव परचेजिंग ऑफ द गुड्स फॉर योर बिजनेस। तो हमारा कमीशन कहलाता है। तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेज हो गए। अब उसके बाद में जैसे लॉसेज, नंबर 8 पॉइंट में हम कर रहे हैं लॉसेज। लॉसेज मतलब हानियां। तो देयर आर सो मेनी लॉसेज व्हिच आर सस्टेन्ड इन बिजनेस। लॉसेज ऑटोमेटिकली अराइजिंग, लॉसेज आर इncidental to business and no business can be carried on. Some of the losses are natural which cannot be avoided. So losses में हमारे एग्जांपल है जैसे डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। जो एसेट्स आपने खरीदी है, फिक्स एसेट्स आपने खरीदी है, उसका मूल्य धीरे धीरे घटता जाता है। तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन, इट इज ए लॉस। डिस्काउंट अलाउड, अगर आप किसी को माल बेचते हैं, एक एग्रीड मूल्य तय हो गया, उसके बाद में भी हमें उससे कम पैसा मिलता है, डिस्काउंट हमें देना पड़ता है, तो इट इज ऑल्सो ए लॉस। तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ द amount to be received from the debtor is called as the discount allowed. It is a loss. These are bad debts. Double credit. अगर हमने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा और अब वो दिवालिया हो गया और अब हम उससे पैसे वसूल नहीं कर सकते, we lost our legal right when one of the debtor of our business is declared insolvent by the court. So that part of the debtor which cannot be realized is called bad debts. Double credit. It is one of the loss which is concerned to business, associated to business. So depreciation, discount allowed, bad debts. Now charity, या donation, दान। If you are the businessman, you have to give some amount as charity to the charitable institutions, to the needy fellows, because you are earning profit by working with society. You are earning the profit from the society, then at some time you have to give donation and charity for the welfare of some specific class of society. So charity is a loss because you give some goods or cash or money to the organization or institution or to some person, but they do not give anything in return to you. तो मतलब आपने जो दिया उसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिला, तो इसलिए वो भी हमारा हानि है। But whenever we give charity, we feel pleasure. दान देने से आत्मसंतुष्टि मिलती है। इट इज ए मैटर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, एंड वी थिंक दैट द गॉड विल गिव यू लॉट ऑफ मनी। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दान या पुण्य करते हैं, किसी का भलाई का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी उसके बदले में ईश्वर, परमात्मा, एक इंटेंजिबल एंड इनविजिबल फोर्स जो है वो आपको हेल्प करता है। तो अगर आप सक्षम हैं, अगर आपने समाज में रहकर पैसा कमाया है और आपके पास में ज़्यादा पैसा है या धन है, तो यह हमें सिखाता है कि हमें थोड़ा बहुत दान पुण्य करना चाहिए। ऐसे लोगों की जरूर सहायता करनी चाहिए जो अपनी स्वयं की सहायता खुद नहीं कर पा रहे हैं, वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है, या उस परिवार पे कोई आर्थिक संकट आ गया है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का जहाँ तक संभव हो मदद करना चाहिए, और व्यवसाय के लिए भी ऐसा करना जरूरी है। इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन पार्ट ऑफ द बिजनेस टू गिव सम मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर पीपल, दैट इज चैरिटी एंड डोनेशन। तो डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, चैरिटी एंड डोनेशन, तो ये लॉसेज हैं, हानियां हैं।
फिर जैसे हम बात करें हमारे इनकम की, नंबर 9 इज इनकम्स विच इज आय जो आप कमाते हैं। तो अगर आप एक ट्रेडर है तो आपने जो है ना माल खरीद कर बेच कर जो पैसा कमाया है, ज़्यादा मूल्य पे माल बेचा है और अल्टीमेटली सारे एक्सपेंसेज मीट आउट करने के बाद में जो बचा है दैट इज योर प्रॉफिट। तो वो इनकम में आपका नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस हो गया। बिजनेस एक्टिविटी से जो आपने पैसा कमाया वो नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस है। उसके अलावा रेंट रिसीव्ड, अगर आपके पास 2-3 बिल्डिंग है और उनको किराए पर दिया हुआ है, आपको पैसा मिल रहा है किराए का, वो रेंट रिसीव्ड है तो आपकी इनकम है। फिर वैसे ही कमीशन रिसीव्ड, अगर आप ट्रेडर होने के अलावा कमीशन एजेंट भी हैं तो आपको एजेंसी सर्विसेज देने के लिए कमीशन मिलता है, तो कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर आपके पास में सरप्लस मनी है और वो आपने बैंक में एफडी करा दी है या इंटरेस्ट आपको मिलेगा। All the teachers are requested to come in the assembly hall. Please wear the mask properly, then come. Thank you. Interest received, commission received, apprenticeship fees received from the industrial trainees, interest on drawing, bad debts recovered, ये सब आपके इनकम्स हैं। Thank you. In the next video, we will discuss remaining terminology related to business. I am sure that it will help you a lot to understand our subject accounting. Share this video to your friends and colleagues. Watch this video and subscribe the video so that you can get my next video relating to education of accounting. It is free for all. Thank you very much.